Next one, mechanism nitrogen cycle. This is one of the important topic in our chapter, that is mineral nutrients. Nitrogen cycle. Nitrogen cycle, as you know, that nitrogen cycle is the perfect cycle. As you know, there are so many biogeochemical cycle are present. Carbon cycle, oxygen cycle, phosphorus cycle, water cycle, but nitrogen cycle is one of them. As you know that abundant nitrogen is present in the atmosphere. Abundant nitrogen is present in the atmosphere, 78 point something. But plants are not able to intake this free atmospheric nitrogen until or unless it is not converted into the atmospheric, that means the nitrogenous compound, either nitrite, nitrate, or ammonium. It is absorbed by the plants in the form of the nitrite, nitrate, as well as the ammonium form. So that's why plants are not able to take the free nitrogen from the atmosphere. And now nitrogen cycle is called the perfect cycle as compared to the other biogeochemical cycle like carbon cycle, oxygen cycle, etc. Why it is so called nitrogen cycle is perfect cycle? Because the amount of the nitrogen remain constant in the atmosphere. Why nitrogen cycle is called perfect cycle? Because amount of nitrogen remain constant in the atmosphere. Although we are not using the nitrogen directly from the atmosphere, but during the formation of the chemical fertilizer, particularly nitrogenous fertilizer, we are trapping atmosphere nitrogen by means of the industrial process. Do you know which process is utilized for the production of the nitrogenous fertilizer? Hello? Hello? Haber's process. Haber's process is one of the process by means of which atmospheric nitrogen is trapped and nitrogen as fertilizer is formed. One of the example is urea. Urea नाम सुने हैं खाद का? Hello? Yes, sir. यूरिया CONH2 होल 2, ये यूरिया जो खाद होता है जनरली एक हेवर्स प्रोसेस होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को टैप किया जाता है और उसके बाद उसको इंडस्ट्रियल प्रोसेस में नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर फॉर्म में इसको यूज किया जाता है. अदरवाइज नाइट्रोजन रिमेन कांस्टेंट इन, जितना अमाउंट नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से ट्रैप किया जा रहा है उतना अमाउंट सॉइल में भी उसको दिया जा रहा है. ये साइक्लिक पाथ हो रहा है. दैट्स व्हाई नाइट्रोजन इज कॉल्ड द that means perfect cycle as compared to the oxygen as well as the carbon cycle. As you know, the oxygen and carbon cycle every moment is disrupting due to human interference. That's why this cycle are not called the perfect cycle, but nitrogen cycle is called the perfect cycle among the all biogeochemical cycle. Okay, you will remember nitrogen cycle is called perfect cycle. Nitrogen cycle involves the different steps. First of all, nitrogen fixation. What are the steps involved in nitrogen cycle? First of all, nitrogen fixation. Second one, ammonification, nitrification, and last one, denitrification. These are the 4 steps involved in the nitrogen cycle. First one, nitrogen fixation. Nitrogen fixation takes place in different way. Biological nitrogen fixation, symbiotic nitrogen fixation, artificial nitrogen or natural nitrogen fixation. As you know, biological nitrogen fixation, or we can say the symbiotic nitrogen fixation, it takes place in the leguminous plant, and nodules present in their roots. Inside the nodules, rhizobium bacteria present, and bacteria, this bacteria helps to convert atmospheric nitrogen into nitrogenous compound. And this nitrogen compound is required by the plant, required for the plant growth. Instead of this, the rhizobium bacteria getting the food and residence in the plant body. Okay, so that's why this this is called the symbiotic nitrogen fixation. Both the organisms are mutually benefited. Can you say that means so many other than leguminous plant, in which type of the plant having the power of the biological nitrogen fixation? Can you say? Other than leguminous plant. Monica? Yes, sir. Other than
leguminous plant, that is gymnospermous plant. You will remember two plants. You can write down this question asked to medical examination. Ginkgo and alnas, gymnospermous plant. Two plants, ginkgo, Ginkgo, ginkgo and alnas, ALNAS, alnas. ठीक है, ये दोनों प्लांट जिम्नोस्पर्मस, although they are gymnospermous plant, they trap the atmospheric nitrogen. Okay, so other than leguminous plant, these two plants, gymnospermous plant, ginkgo and alnas, two plants, ALNAS, alnas, and ginkgo, GINKGO. These two plants that that means एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ट्रैप कर सकते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन कर। अच्छा, नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन एक क्लास में शायद आपको बताया कि नहीं बताया, आई डोंट नो, बट यू रिमेम्बर इट। ड्यूरिंग द लाइटनिंग, जब बिजली गिरता है, रेनी डे या थंडरस्टॉर्म होता है बहुत, उस समय जब लाइटनिंग होता है, at that time huge amount of the nitrogen and oxygen released into the atmosphere, and nitrogen and oxygen combined together, it form the nitrogen dioxide, and nitrogen dioxide whenever react with the water vapor, then it form the nitric acid, and nitric acid fall on the surface of the earth in the form of the acid rain, and this nitric acid break down into nitrite ions, and this nitrite ions absorbed by the plants. This is the a natural way of nitrogen fixation. Again, you will remember it. Lightning का टाइम में क्या होता है, एटमॉस्फेयर में ह्यूज अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन और नाइट्रोजन रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद क्या होता है, दोनों मिक्सअप हो जाता है, हीट का साथ ही मिक्सअप होता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व्हेनेवर मिक्सअप विद द वाटर वेपर, इट फॉर्म्स द नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड क्या होता है, जो कंडेंस होता है तो एटमॉस्फेयर से रेनफॉल होता है, तो इन द फॉर्म ऑफ द एसिड रेन। सॉइल में जाते हैं तो नाइट्रेट आता है, तो नाइट्रिक एसिड क्या होगा, ब्रेक डाउन होता है, नाइट्रेट आयन बनता है उसमें से, और दिस नाइट्रेट आयन इट इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। दिस इज द नेचुरल वे ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। याद रहेगा आप? हेलो हेलो। Yes, sir. हाँ, तो देखिए चैप्टर में मैं नोट्स नहीं लिखा रहा हूँ, इस कारण से आप लोगों को मतलब ये चीज तो डिलीटेड है, फिर भी नॉलेज होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। जो अच्छे स्टूडेंट है, जो मेडिकल में अपियर होना चाहते हैं, इस चैप्टर से क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है वो मैं डिस्कस। जैसे नेचुरल वे में नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिलीज होता है लाइटनिंग का टाइम, और दोनों मिक्सअप होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आफ्टर दैट इज मिक्सअप विद द वाटर वेपर एंड देन कंडेंस्ड एंड fall on the surface of the earth in the form of the nitric acid. This is called the acid rain. एसिड रेन दो फॉर्म में भी होता है, एक H2SO4 फॉर्म में होता है और एक नाइट्रिक एसिड फॉर्म में भी होता है। H2SO4 जहां से H2S गैस रिलीज होता है और वो वाटर वेपर का साथ मिक्स अप होता है तो H2SO4 बनता है, वो एसिड रेन होता है, ठीक है। और नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक का टाइम में नेचुरल वे में नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है उस समय नाइट्रिक एसिड का फॉर्म में वो एसिड रेन होता है, और सॉइल में जब जाता है तब वो ब्रेक डाउन होता है, जनरली नाइट्रेट आयंस इसमें ही होता है, ठीक है। तो naturally this is called the nitrogen fixation. First part of the nitrogen cycle, nitrogen fixation. Second one, ammonification. What do you mean by ammonification? As you know, each and every living organism made up of protein, either plant body or animal body. Plant body and animal body, whenever decomposed and converted into ammonia by the help of the putrefying bacteria or decomposing bacteria, this is known as ammonification. Again, I am saying plant and animal protein, body or animal protein, whenever decomposed by putrefying bacteria and form the ammonia, this is called the ammonification. याद रहेगा? हेलो, Yes, sir. हेलो। हमारा बॉडी, ह्यूमन बींग्स का बॉडी, मान लीजिए हम लोग का रिलीजियस पर्पस से हम लोग को डेड बॉडी को जलाया जाता है, बट इन अदर एनिमल्स उसका तो डेड बॉडी जलाया नहीं जाता है, वो कहाँ होता है आफ्टर डेथ के बाद, कहाँ होता है, कहीं भी पड़ा हुआ रहता है, उस डिकम्पोज होता है कि नहीं होता है,
तो डिकम्पोज्ड इज डन बाय व्हिच बैक्टीरिया, डिकम्पोजर्स, और इसको बोलते हैं पिट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो डिकम्पोज्ड होने का टाइम आइदर प्लांट बॉडी और एनिमल बॉडी, प्लांट बॉडी भी गिरता है तो उसको तो कोई अगर नहीं उठाएगा तो वही भी मिक्स सॉइल का साथ मिक्स अप होता है। डेड बॉडी किसी एनिमल्स का वो भी सॉइल का साथ मिक्स होता है। कोई प्रेडेटर उसको अगर नहीं खाता है तो नेचुरली वो मिक्स अप होता है सॉइल में। तो ये डिकम्पोज किससे होता है ना, बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया से डिकम्पोज्ड हो जाता है, ठीक है। तो अगर डिकम्पोज्ड होता है तो नेचुरली ये मिक्स अप विद इन द सॉइल, दिस इज कॉल्ड द अमोनिफिकेशन, ये अमोनिया फॉर्मेशन होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। प्लांट बॉडी मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, whenever converted into ammonia after decomposition by the help of decomposers or petrifying bacteria, it is called ammonification. याद रहेगा? हेलो? Yes, sir. हाँ, अच्छा एक चीज बताओ, अमोनिफिकेशन तो है, हम लोग का डेड बॉडी जो भी ये है होता है नेचुरल वे में डिकम्पोस्ट होता है। तो जनरल एक्सपेरिमेंटली आप कर सकते हो। घर में मान लीजिए किसी प्रोटीनेशियस फूड मटेरियल आया तो फिशेस मान के चाहिए, इफ यू कीप द फिश आउटसाइड द रेफ्रिजरेटर 2 to 3 days, क्या होगा, वो सड़ जाएगा कि नहीं? यस सर। हेलो? Yes, sir. हाँ, वो सड़ेगा तो उसमें बैड स्मेल आता है कि नहीं? ये सब बैड स्मेल भी आता है। हाँ, बैड स्मेल आता है, तो वो एमोनिफिकेशन होता है। तो प्रोटीन उसमें है, प्रोटीन व्हेनेवर डिकम्पोज्ड, दिस इज नोन एज द अमोनिफिकेशन। तो बैड स्मेल जरूर आएगा, इसीलिए जो अमोनिफिकेशन होता है उसमें से बैड स्मेल आता है, पंजेंट स्मेल आता है, ठीक है ना। तो ये चीज है जो घर में भी हम लोग अगर बाहर में रेफ्रिजरेटर बाहर में अगर प्रोटीनेशियस मीट मछली सब अगर रखा जाए, इवन फ्रूट्स भी, तो क्या होता है उसमें से स्मेल आता है बहुत। तो नेचुरली ये धीरे धीरे डिकम्पोज्ड हो रहा है, ठीक है, तो बैड स्मेल क्रिएट होता है। अच्छा, नेक्स्ट वन अमोनिफिकेशन। इसके बाद क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन। ये थर्ड स्टेप हो गया नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या है, नाइट्रिफिकेशन में नेचुरली ammonia whenever converted into nitrate and then nitrite by the help of pseudomonas, nitrosomonas and nitrobacter, this is known as नाइट्रिफिकेशन। अगेन उसको फिर से मैं बोल रहा हूँ, अमोनिया तो बन गया, पहले प्रोटीन कन्वर्टेड इनटू अमोनिया बाय द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर्स। अमोनिया फिर से क्या कन्वर्ट होगा, अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू पहले नाइट्राइड आयन NO2 माइनस, उसके बाद NO3 माइनस, दैट मीन्स पहले नाइट्राइट होगा उसके बाद नाइट्रेट। देखिए कैसे कैसे ब्रेक डाउन होता है, अमोनिया व्हेनेवर ब्रेक डाउन इनटू नाइट्राइट and then nitrate ion by the help of the nitrosomonas, पहले नाइट्राइड उसमें एरो लगा के देना है। देखिए आप अमोनिया लिख के एरो दीजिएगा तो उसमें पहले लिखे NO3 माइनस, उसके बाद फिर से एरो दीजिए NO3 माइनस, ठीक है। उसमें बैक्टीरिया एरो का ऊपर में पहला कौन बैक्टीरिया होगा, नाइट्रोसोमोनास। सेकंड में कौन बैक्टीरिया होगा, नाइट्रोबैक्टर। याद रहेगा आपको? हेलो? Yes, sir. हाँ, अमोनिया एरो देके पहले लिखोगे NO2 माइनस, एरो का ऊपर में कौन बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास। उसके बाद NO2 माइनस के बाद एक एरो और देना है, उसके बाद NO3 माइनस, उसका ऊपर में कौन बैक्टीरिया होगा, दैट मीन्स नाइट्रोबैक्टर 2। सो डेफिनेशन में क्या है, अमोनिया व्हेनेवर कन्वर्टेड इनटू nitrite and nitrate ions by the help of nitrosomonas and nitrobacter respectively, then it is called nitrification. याद रहेगा? Yes, sir. Hello? Whenever ammonia is converted into nitrite, then nitrate ions by the help of nitrosomonas and nitrobacter respectively, then it is called नाइट्रिफिकेशन। याद रहेगा, बार बार याद, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, इंटरेस्टिंग है।
बाद में फिर आरेक स्टेप होता है फाइनल स्टेट, दिस इज कॉल्ड द डिनाइट्रिफिकेशन। डिनाइट्रिफिकेशन, डिनाइट्रिफिकेशन क्या होता है? अभी तो नाइट्रिफिकेशन हो गया ऑलरेडी नाइट्राइड और नाइट्रेट आयन से, और उसके बाद फिर से ये नाइट्राइड और नाइट्रेट आयंस क्या हो जाएगा, फिर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसमें कौन सा बैक्टीरिया लगेगा? स्यूडोमोनास बैक्टीरिया। तो तीन पहले जो अमोनिफिकेशन में कौन बैक्टीरिया याद रखोगे? वो है पिट्रीफाइंग बैक्टीरिया और डिकम्पोजर्स, ठीक है। नाइट्राइड आयंस में कौन? नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया। नाइट्रेट आयंस में कौन? नाइट्रोबैक्टर। उसके बाद डिनाइट्रिफिकेशन में कौन बैक्टीरिया? नाइट्रेट और नाइट्राइड आयंस जो अगेन कन्वर्टेड इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, दिस इज कॉल्ड द डिनाइट्रिफिकेशन। उसमें स्यूडोमोनास, PSEUDOMONAS, स्यूडोमोनास बैक्टीरिया। ये स्यूडोमोनास बैक्टीरिया फाइनली ये कन्वर्ट करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। तो क्या है, ये साइक्लिक पाथवे इज गोइंग ऑन। समझ में आ रहा है? हेलो Yes, sir. हेलो। हाँ, पहले एक बार फिर Yes, से sir. इसको चॉकआउट कर देते हैं। पहले तो जितना सारा प्लांट और एनिमल प्रोटीन का लिविंग ऑर्गेनिज्म में नाइट्रोजन होता है, तो प्लांट बॉडी, एनिमल बॉडी, वी हैव प्रोटीनेशियस मटेरियल। तो प्रोटीन में हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन ही अमीनो एसिड है, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। इसमें कौन है? डिकम्पोजर्स और पिट्रीफाइंग बैक्टीरिया, वो अमोनिफिकेशन करता है। अमोनिया फिर से कन्वर्ट होता है नाइट्राइट एंड नाइट्रेट आयंस by the help of the nitrosomonas and nitrobacter respectively. This is called the nitrification. और nitrification जब होता है, again this nitrosomonas, that means nitrite and nitrate ions, again converted into free atmospheric nitrogen by the help of pseudomonas bacteria. Pseudomonas, P silent है, PSEU, pseudomonas bacteria. This is called the denitrification. This is called denitrification. So this is all about the nitrogen cycle. Nitrogen cycle, again फिर से मैं कह रहा हूँ, it is called the perfect cycle because amount of the, बार बार ये क्वेश्चन देता है, why the nitrogen cycle is called the perfect cycle? The amount of the nitrogen in the atmosphere remain constant. क्या ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो तो चेंजेस होते रहता है, हो रहा है कि नहीं? हेलो, एटमॉस्फेयर में, हेलो, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्लक्चुएट कर रहा है कि नहीं? कर रहे हैं। बट नाइट्रोजन कभी सुने हैं जो नाइट्रोजन फ्लक्चुएट कर रहा है एटमॉस्फेयर में? ऐसा तो नहीं सुने आप लोग। इसका पीछे कारण है नाइट्रोजन साइकिल जो है वो परफेक्ट साइकिल, उसमें कोई लॉस नहीं होता एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड परफेक्ट साइकिल एज द अमाउंट ऑफ द नाइट्रोजन रिमेन कांस्टेंट इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। इसके बाद नाइट्रिफिकेशन, डिनाइट्रिफिकेशन, आपका बुक में कुछ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्लॉस्ट्रिडियम, एजाटोबैक्टर, ये सब है, राइजोबियम, ये सब नेचुरली कुछ सिम्बायोटिक रूट नोड्यूल्स होता है, उसमें कैसे रूट नोड्यूल्स का अंदर में अच्छा एक चीज है आपका सिलेबस में, फॉर्मेशन ऑफ द रूट नोड्यूल्स, ये एक है मैकेनिज्म है, इसको डायग्रामेटिक थोड़ा पढ़ना है, कैसे कैसे, जैसे रूट हेयर बेंडिंग होता है, तो बेंडिंग होने के बाद उसमें रूट नोड्यूल्स बनता है। तो नेचुरली, अच्छा, द पिगमेंट प्रेजेंट इन द लेगुमिनस प्लांट, लेगुमिनस नोड्यूल्स, कौन सा पिगमेंट बताओ तो, कैन यू से? स्टडी अगर कोई किया है तो बता सकते हैं। लेग हीमोग्लोबिन, वैसे हम लोग का बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है, इंसेक्ट का बॉडी में हीमोसाइनिन होता है, ऐसा लेगुमिनस प्लांट में एक पिगमेंट होता है नोडुल्स में जिसका नाम है लेग हीमोग्लोबिन, LEG, लेग हीमोग्लोबिन। फंक्शन क्या है इसका? ऑक्सीजन स्कैवेंजर, ठीक है। ये पिगमेंट का, जैसा हमारा बॉडी में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रैप करता है, ऐसा लेग हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन ट्रैपर और ऑक्सीजन स्कैवेंजर। उसका कलर क्या है? पिंक कलर। क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लेग हीमोग्लोबिन? द पिगमेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन द लेगुमिनस प्लांट फॉर ट्रैपिंग ऑफ ऑक्सीजन
is known as leg hemoglobin. The color of the leg hemoglobin is pink. इसमें रेड नहीं होता है. हेलो, याद रखोगे? हेलो, Yes, sir. हाँ, कौन सा कलर मैंने बताया? Pink color. हाँ, पिंक कलर एकदम. आप ये देखिए, एक एक बात देखिए. ऑनलाइन क्लासेस में क्या है, एक ऑफलाइन में तो ठीक है, उसमें बहुत टाइप है. ऑनलाइन क्लास में कुछ स्टूडेंट बहुत ध्यान से सुनते हैं, एक एक चीज टीचर को फॉलो करते हैं. बहुत स्टूडेंट्स नहीं सुनते, तो उसको हम प्रेशर देके नहीं ना हम ये कर पाएंगे. आप लोग +2 का स्टूडेंट हो, ठीक है, बट अभी ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग जो टोटल जिस्ट, ऐसा नहीं जो क्लास में जो कुछ समय हम मान लीजिए दूसरा टॉपिक में चले गए, दूसरा चैप्टर में कुछ इंट्रोडक्शन दे दिए, कुछ उसमें से रिलेटेड कुछ टॉपिक आपको. अभी आपका पास 40 मिनट समय है. 40 मिनट में 40 मिनट्स में मैं कोशिश करता हूँ जितना इसमें जिस्ट है इस चैप्टर का, जो मेन चैप्टर है उसी को आपको बताया जाए तो बहुत बेटर होगा. ठीक है ना? और आप लोग भी उसको फॉलो करें. क्यों ना, देखिए ये तो होते रहेगा, कोरोना हम लोग का पीछे नहीं छोड़ेगा नेचुरली. और आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान, क्यों ना आप लोग क्लास 10 में भी सफर किए, 11 में भी सफर कर रहे हैं, अभी पता नहीं 12 में क्या होगा आप लोग का. कोरोना हम लोग का पीछे नहीं छोड़ने वाला. और इस टाइप का ही टीचिंग मेथड ही आपका ज्यादा साल का, मतलब एवरी ईयर्स का यही होगा, जो कुछ दिन के लिए फिर लॉकडाउन हो जाएगा, ये ऑनलाइन क्लासेस होगा. तो नेचुरली आपका ऑप्शन है, चाहे कोचिंग कीजिए, चाहे स्कूल्स को फॉलो कीजिए, कहीं से होगा, ऑनलाइन क्लास को ही आपको दैट मीन्स प्रायोरिटी देना पड़ेगा. ठीक है? तो इसीलिए टीचर्स का बात को आप लोगों को ध्यान पे सुनना चाहिए. जो स्टूडेंट्स को चाहे जो कैजुअल है, छोड़िए ना भाई, गूगल से हम लोग निकाल लेंगे. अरे गूगल तो सबका पास है, और गूगल से निकाल लेंगे तो बहुत सारा चीज जो मैं कह रहा हूँ वो गूगल में नहीं है. ठीक है? तो और ये चीज थोड़ा सा ध्यान से आप लोग फॉलो कीजिए, और क्लास को डेली फॉलो कीजिए. क्लास पहला दिन में 17-18 स्टूडेंट था, आज देख रहे हैं 13 स्टूडेंट मैक्सिमम था, कम होते जा रहा है. हम कह रहे ना, मंडे ऑनवर्ड्स हम लोग जो स्कूल में पहले क्लास लेते थे ना, जैसे स्कूल में क्या जो वेब कैमरा का सामने व्हाइट बोर्ड का उस टाइप का क्लास लेते थे, उस समय मंडे से वो क्लास लेंगे. अभी टोटली घर से ले रहा है, घर में भी व्यवस्था है, लेकिन उसको फिर से एक्टिवेट नहीं किया गया. तो फिर जो डायग्राम होगा, जो ये होगा, फिर से उसको आपका ये होगा. आपका तो खाली मैं रिवीजन वर्क शुरू करेंगे टर्म 2 का. टर्म 2 में सिलेबस कौन चैप्टर से है बताओ तो? हेलो, टर्म 2 का कौन चैप्टर से शुरुआत है? गुनिका? Yes, sir. Sir, plant physiology से photosynthesis in higher plants है. हाँ, वो है, लेकिन फर्स्ट टर्म का 2 चैप्टर, 2 या 3 चैप्टर इसमें इंक्लूडेड है. एक है Yes, sir. बायोमोलिक्यूल, Yes, sir. दूसरा है आपका, Biomolecules, cell cycle. हाँ, सेल और साइकिल तो और एनिमल टिश्यूज है सर. एनिमल, ओनली एनिमल टिश्यूज. उसमें Tissues. एनिमल टिश्यूज का ही है, उसके टिश्यूज के बाद अब बाकी यार कुछ नहीं है उस चैप्टर में, पार्शियल एडिशन है. ठीक है ना? ये यस सर. आप ये रिवीजन करना है. अभी एग्जामिनेशन डेट अभी कोई फिक्स, इस टाइप का कोरोना होगा तो डीएवी सीएमसी, देखिए कोरोना तो खाली पटना में नहीं है या बिहार में नहीं है, कोरोना ऑल ओवर इंडिया में. अभी एग्जामिनेशन डेट कब होगा, किस मोड में एग्जामिनेशन होगा, कोशिश होगा तो ऑफलाइन मोड में एग्जाम लेने का कोशिश होगा. लेकिन अगर वो भी पॉसिबल नहीं, कोरोना को देखते हुए ये लोग ऑनलाइन मोड में भी ले सकते हैं. तो नेचुरली हम लोग को हर चीज के लिए तैयार रहना है. ठीक है ना? ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, तो 90% चांस है जो ऑफलाइन ही होगा. चाहे जिस दिन एक दिन ग्राफ तो नीचे नामेगा, नीचे गिरेगा ये कोरोना का ग्राफ, तो ऑफलाइन होगा. क्यों ना, एग्जामिनेशन कोरोना किसी को डैमेज करे ना करे, एजुकेशन सिस्टम को पूरा डैमेज करके जा रहा है कि नहीं? टोटली एकदम. आप देख लीजिए ये 3 साल में, 2 साल 2.5 साल में नेचुरली कौन स्टूडेंट्स सबसे डैमेज हुआ है? एजुकेशन सिस्टम पूरा डैमेज हुआ कि नहीं? हेलो, यस सर. हाँ, पूरा एजुकेशन को, जैसे जिसका मेडिकल में तैयारी कर रहा है तो लेकिन क्या ना, बहुत सारा चीज उसको मतलब जो अच्छा से वो अपेयर हो सकता था मेडिकल एग्जाम में, वो नहीं हो पा रहा. क्यों ना, उतना प्रिपरेशन नहीं है. ठीक है? तो
उस हिसाब से एक्चुअली आप ही लोगों को ये डिमेरिट्स हो रहा है। डिमेरिट आप ही लोगों को मतलब थोड़ा सा डिफिकल्टीज आ रहा है ऑनलाइन क्लासेस में, लेकिन सेशन तो वो चलते रहेगा। अच्छा, इसके बाद आपका ये है इस चैप्टर में फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल्स है और सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड यह है। उसके बाद बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का कुछ पोर्शन बाकी है, इसको मैं इसको कल डिस्कस कर देंगे, इस चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट है। उसके बाद आपका एक चैप्टर है जो डाइजेशन चैप्टर है, जो डिलीटेड है ना। हेलो, Yes, sir. Digestion and absorption. डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसको कंप्लीट करने का बाद मैं फिर से रिवीजन में थोड़ा टाइम लेंगे, ठीक है ना। अभी इस चैप्टर को थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया दे रहा है, आइडिया क्या पूरा डिटेल्स में बताया जा रहा है, लेकिन जो रिवीजन होगा उसमें थोड़ा सा, जैसे बायोमोलिक्यूल चैप्टर आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्टीज है। डिफिकल्टीज नॉट ओनली हियर बट इवन सभी स्टूडेंट्स को 90% स्टूडेंट्स को बायोमोलिक्यूल चैप्टर में प्रॉब्लम है। क्यों ना, इसमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर केमिस्ट्री से रिलेटेड है और उसमें नेचुरली उसका जो फंक्शन स्ट्रक्चर ये सब कॉम्प्लिकेटेड है। जनरली बच्चों को प्रॉब्लम होता ही है, ये हम लोग भी जानते हैं। और एक है जो फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन जो चैप्टर है, दो क्रूशियल चैप्टर जो आपका है, उसमें रेस्पिरेशन में जो चैप्टर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो थोड़ा डिफिकल्टीज है। मैंने कहा था इसको खाली याद ही करना है, उसको फिर दो। तो जब रिवीजन होगा, रिवीजन में ट्रांसपोर्टेशन में जो पहला आपका ट्रांसपोर्टेशन में ग्रोथ मूवमेंट, ये चैप्टर पहले है ना, मतलब ये फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, तो उससे शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे पूरा होल चैप्टर जो होगा धीरे। अभी टाइम है जनवरी फरवरी, तो हमको लगता है फरवरी ऑनलाइन क्लासेस तो फरवरी तक चलेगा। हो सकता है फरवरी का लास्ट में ग्राफ डाउन होगा तो मार्च से हो सकता है ऑनलाइन या ऑफलाइन में आ जाए, तो ये तो प्रेडिक्शन की बात है। अच्छा, तो गुनिका, आप ऑनलाइन क्लास में कैसे फील कर रहे हैं? Sir, it is okay with me, but some student faces some problems with the online classes हाँ because of the network issues, हाँ, how they where they dwell. Yes, sir. And that's network why. network issues, because so many students